So now we will discuss about nature of heat and work. Okay, so we have studied yesterday, okay, about this heat and work. Both are path function. ये क्या है? दोनों भी path function है. Okay, path function है. So path function, they will obey, they will follow the path function. Okay, because these quantities जो heat और जो work है, हम लोग एक पर्टिकुलर ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ओके, व्हेन वी से अ वर्क इज डन, ओके, जब भी कभी फोर्स होता है, फोर्स इज given to any object and that object is displaced from it. Okay, that is what we will discuss about it. Okay, so very first we'll discuss about the nature of work. Okay, we'll discuss about nature of work and later on we will discuss about nature of heat, nature of work. And whenever we are dealing with, whenever we are saying work in point of chemistry, okay, so we'll study about it. So what is mean by work? Okay, work क्या होता है? Okay, work which is indicated by capital W. Okay, capital W से इसको indicate करते हैं. Okay, so what is that work? Whenever the work is done, consider this is the duster. Okay, duster है, यहाँ पे रखा गया है. Okay, so what I will need to apply? I will need to apply some force. Okay, to lift this object from this particular place, and if I want to keep this duster in a different place. Okay, so what are the quantities which are associated with this kind of a displacement? क्या है? एक तो force लगा, बराबर है, एक तो force हमने दिया उसको, और साथ में क्या दिया हमने? Force and the displacement was there. Okay, the distance, okay, displaced through a distance. So in mechanics, the work is defined as the energy. Okay, it is defined as the energy. It is defined as energy. Okay, so how it is defined as energy, that we will see. So in mechanics, work is given by force multiply by displacement. Force multiply by displacement. Okay, तो जस्ट अभी मैंने एग्जांपल जो दिया आप लोगों को कि क्या हो रहा है, ये डस्टर को मैंने यहां से उठाया. ओके, सो आई हैव लिफ्टेड दिस डस्टर फ्रॉम दिस प्लेस एंड द पोजीशन ऑफ दिस डस्टर इज नाउ डिस्प्लेस. ओके, सम डिस्प्लेसमेंट इज देयर. ओके, वो यहां से वहां पे गया. सो फोर्स हमने दिया. फोर्स को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? सपोज स्मॉल एफ से इंडिकेट करेंगे. एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे. सो इन दिस वे दिस इज द मैकेनिकल फोर्स. बट इन थर्मोडायनेमिक्स, the type of work involved in the process, in any process, is pressure and volume work. Okay, तो ये जो वर्क जो डिफाइन किया हमने, this is for mechanics. Okay, this is for mechanics के लिए. But in case of thermodynamics, how we define the work, it is a PV work. Okay, that is called as a pressure volume work. Okay, तो देखो, pressure volume work, pressure वॉल्यूम वर्क. ओके, सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं किसमें? इन थर्मोडायनेमिक्स. इन थर्मोडायनेमिक्स. सो इन थर्मोडायनेमिक्स वी से दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, देखेंगे कैसे प्रेशर एंड वॉल्यूम के पैटर्न में है. ओके, दैट इज द वर्क इज डन व्हेन द सिस्टम, the gas expands or contracts against the external opposing force. opposing force है. तो देखो, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का, ओके, प्रेशर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर को हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रेशर इज रिटन एज फोर्स. ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, बराबर है. हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रेशर को. कैसे लिखते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, so what is the PV work that we are finding out? Okay, pressure is written as force per unit area. Okay, volume, okay, volume को हम लोग suppose volume से लिख रहे हैं. So now what is the unit of force? यूनिट क्या रहता है फोर्स का? फोर्स का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन. ओके, फोर्स का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? एन से इंडिकेट करते हैं, बराबर है. एरिया, एरिया को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? एरिया को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? मीटर स्क्वायर से, बराबर है ना. हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? मीटर स्क्वायर से. ओके, दैट इज व्हाट मीटर स्क्वायर. ओके, एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से.
और वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग? मीटर क्यूब से। हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? मीटर क्यूब से, दैट इज व्हाट, एम क्यूब। तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो मीटर स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो बचा बचा क्या? इसमें से सिर्फ मीटर बचा। तो व्हाट इज द आंसर? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। सो दिस न्यूटन मीटर इज नथिंग बट, इसको क्या बोलते हैं? जूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ओके, जूल। सो व्हाट इज अ जूल? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, और व्हाट इज द वर्क? वर्क, द यूनिट ऑफ वर्क इज इन टर्म्स ऑफ जूल। ओके, सो यूनिट क्या है वर्क का? यूनिट क्या है वर्क का? जूल। ओके, तो देखो इससे भी आप लोग डिराइव कर सकते हो, इससे भी आप लोग डिराइव कर सकते हो। देखो कैसे, यह फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम लोग किस में लिखते हैं? एन में लिखते हैं। ओके, और डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी जगह पे गया ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ? दैट इज यूनिट इज मीटर, और न्यूटन मीटर यानी क्या होता है? जूल्स होता है। तो आप देख सकते हो मैकेनिक्स में, ओके, फ्रॉम मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो वर्क है उसका भी यूनिट क्या है? जूल ही है। एंड पीवी वर्क, ओके, उसको क्या बोलते हैं? राइट नाउ दिस वर्क इन द थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड एज अ पीवी वर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी एंड वी? प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। ओके, और हमने देखा प्रेशर और वॉल्यूम का भी यूनिट क्या आया? वही आया, सेम जूल्स। आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यूनिट भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो फोर्स, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। ओके, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से 2 मीटर कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1 ही मीटर। और न्यूटन मीटर क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है जूल्स। ओके, so Newton meter is nothing but the joules. So in this way you can understand, okay, in this way you can understand, okay, बुक में आपको ऐसे डी के फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने डायरेक्टली यूनिट के फॉर्म में लिया है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि दोनों का यूनिट क्या आता है? दोनों का यूनिट जूल ही आता है। ओके, सो दिस इज अबाउट दी वर्क। ओके, सो दिस इज अबाउट दी वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया सब लोगों को? थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है वो क्या, किस फॉर्म में होता है? पीवी वर्क होता है। कौन सा वर्क होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क होता है। ओके, सो द गैस मे बी एक्सपांड और द गैस मे बी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, गैस क्या हो सकता है? आइदर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? एक्सपांड हो सकता है। तो हम लोग उसको डिटेल में अभी देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या होता है गैसेस को, और जब गैसेस एक्सपांड होता है तब क्या होता है। ओके, दैट इज, that we will see with the first example, nature of work. The very first example is decomposition of H2O2. ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 से देखेंगे कि उसमें एक्सपांड हो रहा है गैसेस या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? यस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? जूल्स। क्या है? जूल, जिसको जे से भी इंडिकेट करते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट एग्जांपल, विल सी फर्स्ट एग्जांपल हियर, द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, decomposition, decomposition of H2O2. Okay, my voice is audible all of you? ओके, सो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये एग्जांपल देखेंगे कि जब डिकम्पोज होता है, ओके, H2O2, तब एक्चुअली एक्सपांशन हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट वी विल सी। सो कंसीडर अ पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, मोस्टली हमें पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट ही देखना है। ओके, सो इन शॉर्ट आई विल ड्रॉ पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, सपोज ये सिलेंडर है और उसमें ये वाला जो है सपोज पिस्टन है। ओके, इसको थोड़ा डार्क कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो जाए। सो दिस इज अ पिस्टन। ओके, दिस इज पिस्टन अटैच विद दिस रॉड, इस रॉड से अटैच है ये वाला पिस्टन। ओके, एंड initially some this H2O2 is filled. Okay, H2O2 is filled here. Okay, H2O2 is filled here.
और इसके ऊपर ना कुछ तो भी वेट रखा गया है। ओके, इसके ऊपर ना कुछ तो भी ये है वेट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वेट है या फिर मास भी बोल सकते हो, कुछ मास इसके ऊपर रखा गया है, सो दैट वी वांट टू चेक वेदर इट इज एक्सपांडिंग और वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या एक्सपांड हो रहा है। सो विल राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन। सो H2O2, H2O2 in a liquid state, in a liquid state, twice H2O2 in the liquid state, it decompose into water, that is H2O, plus decompose into oxygen. Okay, H2O liquid plus oxygen, that is O2, in the gaseous form, in a gaseous form. So twice H2O plus O2 oxygen. Okay, so this is what the decomposition of H2O2 compound. H2O2 compound, it is filled inside piston and cylinder arrangement. आप देख सकते हो ये पिस्टन है, ये कंप्लीट सिलेंडर है, ये वाला एंड क्लोज्ड है, बराबर है। इसमें H2O2 को डिकम्पोज किया गया। डिकम्पोज करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में है। क्या फॉर्म हुआ? वाटर फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? वाटर फॉर्म हुआ। और गैसेस दे आर फॉर्मिंग, एंड ड्यू टू द गैसेस दे आर फॉर्मिंग, क्या हो जाएगा? गैसेस क्या करेगा? दिस गैसेस, विच गैसेस? ऑक्सीजन गैसेस will push this piston in upward direction. Okay, formation of gases will push this piston in a upward direction. So that I will show here in another diagram. दूसरे डायग्राम में मैं शो करूंगा ये वाला नेचर। तो ये देखो, ये पिस्टन कहाँ पे चला गया? ये ऐसे ऊपर चला गया। थोड़ा सा और ऊपर निकालता हूँ, तो ये पिस्टन ऐसे चला गया ऊपर। ओके, सो what is the difference you are observing between these two diagrams? Okay, when this H2O2 get decomposed inside this piston and cylinder arrangement, ये जब डिकम्पोज हो जाता है तब जो गैसेस फॉर्म हो रही है, ओके, तो जो गैसेस जो फॉर्म हो रही है, कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन गैसेस, वो जो फॉर्म हो रही है वो क्या कर रही है? पिस्टन को अपवर्ड पुश करिए। आप देख सकते हो दोनों में, बराबर है। सो व्हाट दिस प्रोसेस is called as the gas is produced in this reaction, pushing the piston in upward so that the mass in the surrounding is raised as shown in figure. Okay, देखो यहाँ पे ये मास बोल सकते हो या फिर उसको वेट बोल सकते हो। ओके, तो मास क्या हो गया? ये वाला रेज्ड हो गया। सो दिस मास which was kept, this mass which was kept over the piston के ऊपर जो ये मास रखा गया था, because of decomposition of H2O2 क्या हो गया? ऑक्सीजन गैस। ये गैस क्या कर रहा है? उसको पुश कर रहा है, पिस्टन को क्या कर रहा है? अपवर्ड पुश कर रहा है, and the gases will get expand and the mass will raise upward. देख सकते हो आप, मास क्या हो रहा है? अपवर्ड लिफ्ट हो रहा है। ओके, मास is lifted in a upward. So in lifting the mass, the system loses energy to the surrounding. Okay, तब ये क्या होता है? जो सिस्टम में जो भी एनर्जी है, ओके, जो एनर्जी है which is present in the system, it is losing its sum of energy to surrounding. ओके, और इट परफॉर्म्स वर्क ऑन द सराउंडिंग, बराबर है। अभी देखो इसमें सिस्टम क्या हो गया? ये देखो अंदर में डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ करता हूं, ये वाला क्या हो गया? दिस इज सिस्टम के अंदर में क्या है? सिस्टम के अंदर में डिकम्पोज हो रहा है। क्या डिकम्पोज हो रहा है? H2O2 डिकम्पोज हो रहा है अंदर में। ओके, डिकम्पोज होने के बाद सराउंडिंग में क्या है? सराउंडिंग में पिस्टन है, ये सिलेंडर भी है सराउंडिंग में, ये रॉड भी है, ओके, ये वेट भी है। तो ये क्या कर रहा है? This system is creating expansion inside it. Okay, आप देख सकते हो, it is creating an expansion inside it, and due to this expansion, it is losing some of its energy. It is losing some of its energy to the surrounding. Surrounding में क्या कर रहा है? एनर्जी, इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सिस्टम से, सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। और एनर्जी जब ट्रांसफर कर रहा है तब ये साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है? ये वर्क कर रहा है। किसके ऊपर वर्क कर रहा है? ये सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। कैसे समझ में आया आप लोगों को कि सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर में वर्क कर रहा है? आप देख सकते हो, ये देखो पिस्टन किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और मास को ये क्या कर रहा है? लिफ्ट कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर है ना। तो सराउंडिंग से ये जो फोर्स है सराउंडिंग से एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, बट उससे भी ज्यादा फोर्स ये सिस्टम उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। और हम लोग बोल सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? द वर्क इज डन बाय सिस्टम। ओके, सो
the surrounding, or it performs work on the surrounding with no heat being transferred, a loss of energy by the system is equals to the work done by the system on the surrounding. तो जितनी amount of energy ये loss कर रहा है system to surrounding में, उतना ही amount of ये क्या कर रहा है, ये work किसको दे रहा है, कौन किसके ऊपर work कर रहा है, system is right now doing work on the surrounding, and such kind of work is known as a PV work. क्या बोलते हैं इसको, ओके, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क, ओके, वर्क विच एक्सपांशन है हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है इनसाइड द सिलेंडर, एक्सपांशन ऑफ द गैसेस, और एक्सपांशन ऑफ द गैसेस होने के कारण क्या हो रहा है, ये देखो आप पिस्टन क्या हो रहा है, अपवर्ड लिफ्ट हो रहा है, एंड एज पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड, mass it is lifting in an upward direction, and this work which is taking place is called as the expansion work. ओके, कौन सा वर्क बोलते हैं इसको, एक्सपांशन वर्क बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्सपांशन वर्क, द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ये देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सिस्टम है अंदर में, तो दिस गैसेस विच आर एक्सपांडिंग, oxygen gases which are expanding inside the system, inside this piston and cylinder arrangement, this is pushing the piston in upward direction and the mass is raised in upward direction. Mass क्या हो रहा है, upward lift हो रहा है, and this kind of a work is known as a PV work, and that is expansion work. Okay, so expansion work समझ में आया सब लोगों को. So gases are expanding. Okay, second example देखते हैं उसमें क्या हो रहा है वो देखते हैं. Okay, so second example is reaction between ammonia, that is NH3 gas, and HCl gas. Okay, second example देखेंगे हम लोग, reaction between NH3 gas. So we'll write down, yes, second example we'll see reaction between that is NH3 gas and H3 gas and NH3 gas and HCl gas and HCl gas, हाइड्रोक्लोरिक गैस. ओके, तो हम लोग अभी रिएक्शन देखेंगे कि NH3 ओके अमोनिया गैस है और हाइड्रोक्लोरिक गैस, इनका रिएक्शन क्या होता है. So we'll write down first reaction NH3 it is in gaseous form, okay, plus hydrochloric acid that is also in terms of gaseous form, and it is forming NH4Cl, ammonium chloride it is forming NH4Cl, और इसका स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में है. ओके, लुक एट दिस वंस अगेन, दिस अमोनिया गैस वी हैव टेकन एंड इट इज रिएक्टेड विद द हाइड्रोक्लोरिक गैस. ओके, हाइड्रोक्लोरिक गैसेस फॉर्म में, तब ये गैस रिएक्ट होके क्या क्या फॉर्म कर रहा है, NH4Cl फॉर्म कर रहा है. ओके, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है विच इज इन अ सॉलिड स्टेट. सो विल अंडरस्टैंड what is happening when this reacts inside piston and cylinder arrangement. तो देखेंगे हम लोग, ड्रॉ करेंगे एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट ड्रॉ करेंगे और उसमें क्या हो रहा है वो देखेंगे हम. So consider this is the piston. Okay, consider करो कि ये क्या है, पिस्टन है. Okay, which is connected with the rod. Okay, which is connected with the rod. Okay, ये रॉड से ऐसा रखा गया है और इसमें क्या हो रहा है, NH3 प्लस दिस NH3 गैस, ओके, प्लस HCl गैस, ये क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है. ओके, रिएक्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH3 गैस प्लस HCl गैस. ओके, HCl गैस ये रिएक्ट हो रहा है. ओके, एंड आफ्टर गेटिंग रिएक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, यस विल सी, दिस इज द ओके. सो आफ्टर गेटिंग रिएक्ट, सो ये देखो क्या हो रहा है, ये पिस्टन आ गया यहाँ पे नीचे. ओके, ये आ गया ऐसे नीचे आ गया, आप देख सकते हो. ओके, क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस हो गई यहाँ पे, व्हाट प्रोसेस, आइदर एक्सपांशन और कंप्रेशन इनसाइड दिस. ओके, तो NH4Cl क्या करेगा, ये सॉलिड में फॉर्म हो जाएगा. दिस इज NH4Cl दैट इज फॉर्म. ओके, so now look at these two conditions, in first the reaction between
NH3 ammonia gas and hydrochloric gas. Okay, after reacting, this will convert into solid state of अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया. देखो यहाँ पे नीचे में डिपॉजिट हो गया अमोनियम क्लोराइड. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, व्हाट प्रोसेस, क्या प्रोसेस हुआ यहाँ पे? इफ वी से इनिशियली दिस इज द मास विच इज प्लेस्ड. ओके, ये मास जो रखा गया था यहाँ पे. ओके, मास and right now this mass. Okay, so what has happened, the compression process. Okay, so क्या है, contraction बोल सकते हैं इसको या फिर compression है. Okay, process बोल सकते हैं हम लोग. So what is that? Decrease in a volume as the reaction progresses, the gases are consumed resulting in a decrease in volume. आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम देखो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम. ओके, लुक एट दिस, डिक्रीज इन अ वॉल्यूम. इनिशियली देखो वॉल्यूम कितना था, ज्यादा था, बिकॉज दे वेर इन गैसियस स्टेट. दे वेर इन गैसियस स्टेट. आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर रिएक्टिंग विथ ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग अ सॉलिड स्टेट. They are forming a solid state, and as they are forming the solid state, what will happen? The mass which is placed over this piston will push the piston in a downward direction. ये किस डायरेक्शन में पुश करेगा उसको? डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, resulting into the compression process. Resulting into the compression process. So in this process, the surrounding lose energy. Okay, surrounding क्या होगा? सराउंडिंग क्या करेगा, किसके ऊपर वर्क करेगा? सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा. ये हमारा अंदर वाला सिस्टम है, ये वाला क्या है, हमारा अंदर वाला सिस्टम है. अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, आज द पिस्टन इज पुश्ड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है? सराउंडिंग. बाहर की जो सराउंडिंग है वो सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है, एंड लूजिंग इट्स सम ऑफ एनर्जी. ओके, टू द सिस्टम एंड परफॉर्म वर्क ऑन अ सिस्टम. If no heat transfer occurs, work done by surrounding is equals to gain in energy by the system, and this is called as a PV work. Okay, इसको क्या बोलते हैं? This is called as a PV work बोलते हैं. Okay, and this is called as the PV work. Okay, so called as the compressed work. Okay, जो पहले वाला वर्क था वो क्या था? एक्सपांशन वर्क था. ये वाला क्या है? कंप्रेशन वर्क है. ओके, सो कंप्रेशन, व्हाट इज हैपनिंग टू दी, what is happening to the substance which is filled inside this gas cylinder arrangement? तो ये क्या हो रहा है? compressed हो रहा है. ये क्या हो रहा है? compressed हो रहा है. That's why we will say this work is the compression work. Okay, so in this process the surrounding is losing some energy, and thus the work refers to a way by which a system exchanges energy with the surrounding. So have you understood what is the meaning of nature of work? So the nature of work in a thermodynamics is what? A PV work. और वो वर्क कब मिलता है? वो वर्क तब मिलता है जब क्या होता है? एक्सपांशन होता है. whenever there is either there is expansion, okay, expansion of the substance, expansion of the substance in piston and cylinder arrangement, or there may be a compression. Okay, there may be the compression, and these two works are called as PV work. Okay, उन दोनों वर्क को क्या बोलते हैं? PV वर्क. क्या है PV वर्क? प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क. और हमने फाइंड आउट किया है इनका यूनिट क्या आता है? जूल्स आता है. So what is the unit of work? Joules. Okay, so this is the nature we have seen for the work. Now we'll see the nature of heat. Okay, we'll see the nature of heat. The nature of heat, because our heading is nature of heat and work. तो वर्क का नेचर हमने देख लिया. कौन सा नेचर है वो? पीवी वर्क है. थर्मोडायनामिक. ओके, थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क जो मिलता है हमें वो कौन सा है? इट इज अ पीवी वर्क. सो सेकंड वी विल सी द नेचर ऑफ हीट. ओके, nature of heat. Nature of heat. So it is very simple, which is indicated by Q. Heat is indicated by Q. What is heat? It is also a form of energy. Heat क्या है? It is also a form of energy. Okay, energy. When we are saying it is a form of energy, उसका भी unit क्या है? Joule C है उसका unit. Okay, so all the forms of energy, okay, all the forms of energy will have a unit as a joule. Okay, उसका भी यूनिट क्या होगा? जूल सी है. सो like heat,
a form of energy by which system exchanges energy with its surrounding. अभी देखो हमने क्या देखा कि ये पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है, बराबर, ये पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है, ओके, ये सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है। तो क्या हो सकता है, आइदर हीट कैन बी ट्रांसफर, ओके, आइदर हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, बराबर है, ये हमारा अंदर वाला जो है सिस्टम रहेगा और बाहर वाला क्या है, सराउंडिंग, बाहर में जो है वो क्या है, सराउंडिंग है, ओके। सो आइदर heat can be transferred from system to the surrounding or heat can be transferred from surrounding to the system, okay, it depends on the process, it depends on the process, okay, ये process के ऊपर dependent होता है। so like heat is a form of energy by which system exchanges energy with its surrounding. When system and its surrounding are at a different temperature, heat either flows in or let the system, okay, तो देखो अगर मान लो सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा है, ओके, तो ये मैंने आपको लॉ बताया था किसके लिए, दिस इज लॉ ऑफ हीट, ओके, लॉ बताया था किसके लिए, हीट के लिए। हीट ऑलवेज heat always flows from heat always flows from high temperature to low temperature, okay, high temperature to low temperature, high temperature to low temperature, and based on this this will be the nature of transfer of heat, okay, the nature of transfer of heat will be what, it will always transfer from high temperature to the low temperature, and that is what the nature of heat, वो nature होगा heat का, okay। तो system क्या कर सकता है, आइडर सिस्टम में से हीट बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकती है या फिर सराउंडिंग में से सिस्टम में ट्रांसफर हो सकती है। तो अभी कौन सा हाई है और कौन सा लो है वो हम लोग देखेंगे, ओके, वो दैट वी विल अंडरस्टैंड, ओके। so this is about the nature of heat. Now we'll see the sign conventions of work and heat, okay, so we'll see the sign conventions, okay, उसके जो साइन कन्वेंशन है, ओके, कैसे लिखते हैं वो देखेंगे हम लोग। साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट एंड वर्क, साइन conventions of heat and work, sign convention, okay, so we know that heat is represented as q, okay, q से represent करते हैं, denote करते हैं, और work को capital W से denote करते हैं। so now what we want, sign convention means what, it is depends on the quantity of work as well as quantity of heat, whether it is ट्रांसफरिंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, बराबर है, सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है हीट या फिर वर्क ट्रांसफर या फिर हीट ट्रांसफर सराउंडिंग टू सिस्टम हो रहा है, उसके बेसिस पे ये साइन कन्वेंशन उसका दिया जाता है। सो एनर्जी चेंजेस फ्रॉम सिस्टम्स आर कंसीडर्ड हियर आफ्टर, सो एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। ये देखो अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये क्या है हमारा, ये सिस्टम है, ओके, suppose this is the system, okay, suppose energy is coming from the surrounding, okay, एरो की तरफ ध्यान दो, okay, so इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो what I am talking about energy, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी, ओके, अगर एनर्जी, ओके, ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी इज एंटरिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, इट हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हीट ट्रांसफर हो रही है कहां से, सराउंडिंग से, बाहर में क्या है, सराउंडिंग है, तो ये सराउंडिंग है, ओके, तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट अगर ट्रांसफर हो रही है, यानी क्या हो रहा है, सिस्टम की हीट बढ़ रही है, बराबर है ना, सिस्टम की हीट बढ़ रही है, और जो ये सिस्टम की जो हीट बढ़ रही है उसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे, बराबर है, पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे, एंड वी विल राइट दिस एज व्हाट, हीट एब्सॉर्ब्ड, बराबर है ना, हीट एब्सॉर्ब्ड, बराबर, सो वी विल राइट दिस एज अ हीट एब्सॉर्ब्ड, यस, हाउ वी कैन से हीट एब्सॉर्ब्ड, कैसे बोल सकते हैं हम लोग इसको, हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इनसाइड, एरो देखो, उसका एरो देखो कहां पे है, हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इनसाइड द
system and this heat is will be the positive. ये heat क्या होगी? Positive. Why positive? क्योंकि जो system की जो heat है वो बढ़ जाएगी. वो क्या है? बढ़ जाएगी. If heat is released from the system, okay, अगर heat क्या होती है? Release होती है किससे? System से. कहाँ पे? Surrounding में. Okay. So I'm writing here, if heat is released, okay, so look at this, heat अगर ट्रांसफर हो रही है कहां से? सिस्टम से सराउंडिंग में, बराबर है. तो जब सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो जाएगी कहां पे? सराउंडिंग में, तो सराउंड ये सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना. एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लोग पॉट है, बराबर है, पॉट है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसको गर्म किया आपने. ओके, तो क्या होता है? हीट ट्रांसफर ही होती है कहां पे? सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होगी. तो सराउंडिंग में जब हीट ट्रांसफर होगी उस पॉट से, तब उसमें हीट क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी. दैट्स व्हाई सच हीट रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम विल बी इंडिकेटेड बाय Q माइनस. ये निगेटिव से इंडिकेट करेंगे हम लोग. किससे इंडिकेट करेंगे हम लोग? उसे उसको निगेटिव से इंडिकेट करेंगे. ओके, सो Q पॉजिटिव इज व्हाट? heat absorbed by the system from the surrounding. Okay, heat absorbed by the system from the surrounding. Okay, ये हम लोग लिखते हैं, कन्वेंशन उसके लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए. Okay, I am going to write down all this here. Okay, right side में लिखता हूं मैं. What is Q positive? What is Q positive? It is heat absorbed. It is heat absorbed by system from surrounding. Okay, then Q negative. What is Q negative? ये Q negative क्या है? Heat released from system. Okay, Q negative, heat released by system to the surrounding. Heat released from system to the surrounding. Okay, so this is about heat. Okay, this is about heat. Now what is about the work? Okay, work के लिए क्या है? Work is done on the system by the surrounding. Okay, work, अगर देखो work ऐसे लिखता हूं मैं. ओके, ये एरो देता हूं मैं आपको. ओके, ये यहाँ पे. सो सपोज दिस इज द वर्क. ओके, दिस इज द वर्क. अभी ये बताओ, ये एरो जो दिया हुआ है किसके साइड में दिया हुआ है? सिस्टम. इसका मीनिंग क्या है? वर्क कौन कर रहा है? सराउंडिंग. बाहर में क्या है? सराउंडिंग. किसके ऊपर वर्क कर रहा है? सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है. सो दिस वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम बाय सराउंडिंग. दिस वर्क इज टेकन एज अ पॉजिटिव. ये वर्क क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव में इंडिकेट करते. अगर वर्क किसने किया? सिस्टम ने किया. किसके ऊपर? सराउंडिंग के ऊपर. देखो ये एरो से ही आपको समझ में आ जाएगा, अंदर में क्या है? सिस्टम में. बाहर में क्या है? सराउंडिंग में. उसका मीनिंग क्या है? ये एरो का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है. इसका मीनिंग क्या है? कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है? सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, बराबर है. एंड दिस वर्क विल बी निगेटिव. ये देखो, ये एरो का डायरेक्शन क्या है? सिस्टम के अंदर में. इसका मीनिंग क्या है? वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन अ सिस्टम. सो विल राइट डाउन Q W पॉजिटिव क्या होता है और W नेगेटिव क्या होता है, दैट वी विल राइट डाउन. सो W पॉजिटिव मीन्स it is the work done on system by surrounding. Work done on system by surrounding. शॉर्टकट में लिखता हूं मैं. ओके, और W निगेटिव देखो क्या हो जाएगा? W निगेटिव क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग. सो वर्क डन by system on surrounding. Work done by system on surrounding. Okay, so look at this once again. What we were discussing, we are discussing about साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन मीन्स व्हाट? कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है, कौन कहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है. ओके, उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू. ओके, सो साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट एंड वर्क. हीट इज इंडिकेटेड बाय लेटर Q and work is indicated by W. Okay,
सो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, अंदर में सिस्टम ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, अंदर में सिस्टम ड्रॉ किया, सिस्टम के अंदर। ओके, और उसको एक बाउंड्री दे दिया मैं, ताकि आपको से समझ में आए कि ये सिस्टम के अंदर में क्या हो रहा है। ओके, और बाहर में क्या लिखा मैंने, सराउंडिंग लिखा। ओके, सो आउटर टू दैट सिस्टम विल बी द सराउंडिंग। ओके, ये हमें पता है कंसेप्ट। सो लुक एट दिस नाउ, ये मैंने एनर्जी के लिए लिखा, हीट के लिए लिखा। ओके, सो हीट इज राइट नाउ एंटरिंग इनसाइड। ये देखो एरो क्या है, अंदर में आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, बराबर है। सो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। देखो ये एरो कहां पे आया है, एरो इज फेसिंग टूवर्ड्स सिस्टम। टूवर्ड्स सिस्टम मीन्स व्हाट, सिस्टम के अंदर की हीट बढ़ेगी, और सिस्टम के अंदर की हीट बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए उसको पॉजिटिव लिया गया है, तो इसको इसीलिए उसको पॉजिटिव लिया गया है। ये देखो एरो, दिस एरो इज टूवर्ड्स सराउंडिंग। इसका मीनिंग क्या है, हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। ओके, हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग में हीट जा रही है, सराउंडिंग में हीट जा रही है, यानी सिस्टम के अंदर की हीट क्या हो रही है, सिस्टम के अंदर की हीट निगेटिव हो रही है, यानी सिस्टम के अंदर की हीट क्या हो रही है, कम हो रही है। सिस्टम के अंदर की हीट क्या हो रही है, कम हो रही है। रिमेंबर दिस, ऑल दी साइन कन्वेंशंस वी आर रेफरिंग विथ रेफरेंस टू सिस्टम। सिस्टम को रेफर में, सिस्टम को कंसीडर करके हम लोग ये क्या करें, सिंबल्स ड्रॉ कर रहे हैं। सिस्टम के अंदर की हीट क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा, वर्क के लिए, वर्क देखो कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है, सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है, और उस वर्क को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओके, ये देखो arrow is facing towards the surrounding means what, the work is done by system on the surrounding. Okay, so in this way one can easily understand its sign convention. समझ में आया सब लोगों को sign convention? Look at this sign convention. Any problem in the sign convention?